आज हम लोग फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जानेंगे। एंगल ऑफ रिपोज, इसे एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहते हैं। It is the angle that an inclined plane makes. Inclined plane makes with horizontal when a body placed on it. When a body placed on it, just start to slide. Just start to slide. Slide down. यानी कहता है कि एक इंक्लाइनेशन प्लेन हॉरिजेंटल के साथ वह कोण बनाता है जब उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी गई है जो जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, यानी एंगल की वह वैल्यू जिस पर बॉडी जो है जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, उस एंगल को एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। सपोज दैट दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। सपोज दैट OB is an inclined plane and OA is the horizontal. This is the horizontal surface. OA. A body, suppose that a body is kept on this. एक बॉडी इस पर रखा गया। Clear? The weight of the body acting vertically downward. W. Clear? तो ये जो ब्लॉक रखा गया है कहता है कि एंगल, यह एंगल यदि मान लीजिए कि फाई है, ठीक है, दिस इज द एंगल फाई मेकिंग द इंक्लाइंड प्लेन विथ द हॉरिजेंटल। तो कहता है कि फाई की वह वैल्यू जिस पर ये जो बॉडी है जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, यह जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो है स्लाइड करना शुरू कर दे। कैसे ही स्लाइड करना, जस्ट टू स्लाइड। जैसे ही यदि जिस वैल्यू पर, ये फाई की जिस वैल्यू पर यह जो है बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जस्ट बिगिन टू स्लाइड, स्लाइड हो नहीं रहा है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। तो इस बॉडी का जो वेट है वह वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा और इस पर जो नॉर्मल है सरफेस का वह जो है, देखें ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो फाई। क्लियर? The weight W can be resolved into two perpendicular components.
इंटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसे हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इधर होगा W cos phi और along इसके होगा W sin phi। Since the body is just slide down, just start to slide down, so the frictional force is acting in that direction and it will be the limiting frictional force Fs. It clear? So the R is balanced by W. R is any normal reaction balanced by the W cos phi. W cos phi. And the static, that is the limiting frictional force Fs, is balanced by W sin phi. यह फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया। सेकंड इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो गया W sin phi बटा W cos phi बराबर Fs बाई R। W कैंसिल हो गया तो ये हो गया tan phi इक्वल टू Fs बाई R। we know Fs by R is equal to mu s, coefficient of limiting friction, तब ये क्या हो गया Fs by R is equal to mu s, इसलिए tan phi is equal to mu s। That means tangent of angle of repose equal to the limiting coefficient of limiting friction, we can conclude from the angle of the friction. We see here the angle of friction. We know angle of friction, that is the tan theta is equal to mu s, and angle of repose tan phi is equal to mu s। Therefore from both, दोनों से हमें क्या मिलता tan theta is equal to tan phi, that is theta is equal to phi, यानी angle of repose is equal to the angle of friction। angle of repose equal to the angle of friction। दोनों बराबर होते हैं। So we have to keep in mind, if the word is used somewhere the angle of repose and somewhere the angle of friction, there is no difference between them। इसका अर्थ हुआ कि यदि कहीं पे ये दोनों इस्तेमाल की गए, कहीं पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कहीं पे एंगल ऑफ रिपोज, तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ही बराबर होते हैं
और दोनों के लिए इक्वेशन हमारा एक जैसा है. इट क्लियर? नाउ we derive the acceleration when a body slide down on an inclined plane. Acceleration in body when slide down on an inclined plane. अब हम देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पर suppose this is an inclined plane OA and this is the horizontal plane on which a plane is inclined. OB is the horizontal on which OA is an inclined plane. It makes the angle, suppose that alpha. A body of mass m is kept on the inclined plane. इस जो है इस पर एक बॉडी रखा गया है जिसका मास क्या है? m है. कहाँ रखा गया है? इंक्लाइन प्लेन पर. ठीक है. तो इस बॉडी की जो वर्टिकल वेट होगी वह वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. ठीक है. और जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के जरिए वह वर्टिकली अपवर्ड लगेगा. ठीक है. तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ द वेट एंड डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन मेकिंग द एंगल अल्फा ऑल्सो. इट क्लियर? The weight can be dissolved into two perpendicular components, W cos alpha, and in this direction along the inclined plane, W sin alpha. Now we increase the angle greater than the angle of repose. अब इस एंगल को इतना बढ़ाते हैं कि यह एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो. देन द बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड डाउन. तो एक्सीलरेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड द बॉडी इज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. सपोज दैट Fs एंड इट जस्ट स्लाइड डाउन. अब ये जो है एंगल ऑफ जो अल्फा है इसको जो है स्लाइडली इंक्रीज है ना. एंगल अल्फा स्लाइटली इंक्रीज देन द एंगल ऑफ रिपोज so that the body slide down and accelerate. Clear? तो जब यह नीचे की ओर एक्सीलरेट होती है फ्रिक्शनल फोर्स अपर की ओर लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स है ना,
नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स बराबर क्या हो गया, W साइन अल्फा माइनस एफ, क्योंकि यह जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और यह अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस बाय W, R इज बैलेंस बाय W cos अल्फा, यह इसके द्वारा बैलेंस है। ठीक है, इफ A be the acceleration, be acceleration produced then by Newton second law, F is equal to ma. So this is the accelerating force and this is also the accelerating force, F dash is equal to, so both force will be equal, so इसलिए F dash is equal to F, then ma is equal to W sin alpha minus Fs. It's clear? W sin alpha is equal to Fs. We know Fs by R is equal to mu s, इसलिए Fs बराबर mu s R. Put this value here, then ma is equal to W sin alpha minus mu s R. Is clear? ma is equal to W sin alpha minus mu s R. R is equal to W cos alpha. ma is equal to W sin alpha minus mu W cos alpha. और चूंकि W is equal to mg, इसलिए पुट दिस वैल्यू, ma is equal to mg sin alpha minus mu s mg cos alpha. m दोनों साइड कॉमन है तो यह डिलीट हो जाएगा, तो a is equal to g sin alpha minus mu s g cos alpha, या a बराबर sin alpha minus mu s cos alpha into, this is the acceleration produced in the body while slide down on an inclined plane. यदि कोई बॉडी स्लाइड करता है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, या वर्क डन क्या होगा? Work done when a body slides on horizontal plane. This is a horizontal plane. This is a horizontal plane on which a block is kept of mass m. मास कितना है? तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, बराबर mg, और सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल लगेगी थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी r.
suppose that a force F is applied, तो यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा F, ठीक है, या इस डायरेक्शन में काम करेगा बिटवीन द कॉन्टेक्ट एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेसेज. सपोज दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द force, the body displays to here. तो यहां भी इसका वेट नीचे की ओर वर्टिकली काम करेगा. W is equal to mg and the normal reaction in this direction R, और Fs यहां भी होगा. The displacement of body is nearly S. Clear? So the work done W is equal to Fs into S. Work done क्या होगा? Suppose that a force is applied, है ना, due to which the body just displaced by a displacement S and reach to the point. Suppose that this is from A to B, A से B तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो Fs जो है काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर, क्योंकि बॉडी इज इन मोशन डिस्प्लेस फ्रॉम द A to B, तो यहाँ Fs क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया. वी में राइट द काइनेटिक, के लिख सकते हैं के, और द काइनेटिक राइट द के. तब जो है वर्क डन क्या होगा? एफ के इंटू एस. क्लियर? और एफ के बराबर क्या होता है हम जानते हैं, म्यू आर. तो डब्ल्यू इक्वल टू म्यू के आर इंटू एस, और आर किसके द्वारा बैलेंस है? वेट के द्वारा. तो डब्ल्यू इक्वल टू म्यू के, है ना, डब्ल्यू एस. डब्ल्यू बराबर क्या है? एम जी. तो डब्ल्यू बराबर म्यू के एम जी इंटू एस. दिस इज द वर्क डन व्हेन ए बॉडी स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. यही है वर्क डन जब एक बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्लाइड कर रही है, तो वैसी स्थिति में यह क्या होगा. In the next session, I will talk on the work done when a body slide down on an inclined plane and slide up on an inclined plane. That's all.